Hello everyone. Today we are going to discuss one important topic of binomial theorem, which is coming application of binomial theorem. That is find remainder using binomial theorem. Okay, remainder, find remainder using binomial theorem. Okay, so for that we have to know that we know the expansion of 1 plus x raised to n, that is given by nc0 plus nc1x plus nc2x square plus ncn x raised to n. Okay, means this is first term, that is a, that is b. Okay, we know the expansion of a plus b raised to n is nc0. Okay, a raised to n, b raised to 0, nc1, a raised to n minus 1, b raised to 1, like that, and up to b raised to n. Okay, if we notice one thing in a given expansion, that is nc0, nc1, nc2 and ncn all are binomial coefficient, and that are positive integers, all are positive integers. And we know that nc0 is nothing but 1, so we can write in a place of nc0 is 1. Okay, and we can take common x from all the remaining terms, so it becomes x nc1 nc2 into x nc3 into x square and up to ncn x raised to n minus 1, like that. Okay, if we let this term as a k, so 1 plus x raised to n becomes 1 plus xk. Okay, so it is a 1 plus xk, so we can say that this term, ठीक है, complete term is a multiple of x. xk is multiple of x. Okay, why? Because it is an integer, it is also integer, it is also integer, and x is multiplying each of the following terms. So we can say that if we take common x from terms, then we can say that given expression is a multiple of x. For example, if you write 5 into 10, or we can say that 5k, so we can say that given number or given expression is a multiple of 5. So using this property or using this result, we can find the remainder in binomial theorem. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके, सो for fast calculation, if 1 plus x raised to n is given, so we directly write 1 plus kx. Okay, for example, if I write 1 plus 5 raised to 100, so I can write 5 raised to n. Okay, better. So I can say that 1 plus 5k. Okay, बिकॉज क्या होगा कि 5 सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो जाएगा और सारे टर्म्स में क्या होगा, कॉमन होगा, तो हम लिख सकते हैं 5k. ओके, और इस पे अगर कोई भी पावर है, मान लो 100 पावर है, तो भी आप ये बोल सकते हो इट विल कम आउट लाइक दैट 1 प्लस 3k. ओके, एंड 1 plus 6 raised to 2002, it is also like that 1 plus 6k. Okay, if I ask what about 2 minus 1 raised to 100, so it will comes out to be, because here is minus 1. ओके, सो लास्ट का जो टर्म होगा वो माइनस 1 की पावर क्या होगा, 100 होगा. बाकी सारे टर्म्स में क्या होगा, 2 होगा, है ना. इसको थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, सो इट बिकम 100 c0 2 रेज टू 100, and second term is minus 1. Okay, so minus 1 raised to 0. Next one is 100 c1 2 raised to 99 minus 1 raised to 1. Okay, 100 c1 2 raised to 99 minus 1 raised to 2, and it goes up to 100 c 100
2 raised to 0 minus 1 raised to 100. Okay, so you can notice here from first term onwards, in each term contains 2. Okay, 99, 2 raised to 1 minus 1 raised to 99. तो आप क्या कर सकते हो, यहां से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 आप कॉमन लोगे, जो भी एक्सप्रेशन बचेगी, और लास्ट में क्या होगा, 100 से 100 1 होता है, 2 रेस टू 1 होता है, और माइनस 1 रेस टू 100 1 होता है, 1 बच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आएगा 2k प्लस 1 टाइप का, मीन्स 2 माइनस 1 रेस टू 100 किस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, 2k प्लस 1 टाइप का। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो देखो एक बार, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है, लेट अस से 3 माइनस 1, बट इस बार मैं पावर लिख देता हूँ 99, तो ये आएगा 3k माइनस 1 टाइप का। वाई, बिकॉज लास्ट टर्म जो होगा वो माइनस 1 रेस टू 99 होगा, और माइनस 1 रेस टू 99 नेगेटिव नंबर है। समझ आ रही है बात, ठीक है। सो इट विल कम आउट टू बी 3k माइनस 1 टाइप। तो ये जो हमने सीखा, वी विल यूज इन द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक मैं और चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है कि 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चलो ये ले लेते हैं, 3 प्लस 2 रेस टू 100 है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो क्या आएगा, 3k तो आएगा। 3k कहाँ तक आएगा, फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक, बट ये 2 की पावर 100 बच जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, 2 की पावर 100। आप इसे 1 की तरह ट्रीट ना करोगे, 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 ही आता है, या प्लस 1 होगा या माइनस 1 आएगा, डिपेंड करता है साइन पे। बट 2 की पावर अगर 100 लगाओगे तो लास्ट वाला टर्म 2 की पावर 100 ही बचेगा। क्लियर है ये वाली बात। ओके, सो इसी को यूज करते हो। जैसे आपसे किसी ने बोला 5 प्लस 3 रेस टू 101, तो आप बोलोगे 5k प्लस 3 101 टाइप का ये नंबर आएगा। सो यूजिंग ऑल द रिजल्ट्स, नाउ solve some questions. Okay, so question number 1 is given by, prove that or find remainder when 6 raised to n minus 5n is divided by 25. ठीक है। What is the remainder when 6 raised to n minus 5n is divided by 25, where n belongs to natural number? So use given result and prove that given number is multiple of divided by 25. Okay, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 रेज टू एन को आई कैन राइट 5 प्लस 1 रेज टू एन माइनस 5n। और अब आप देखो, जैसे मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस बार एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे 25 का मल्टीपल देख चेक करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, एन सी 0, 5 रेज टू एन 1 रेज टू 0। नेक्स्ट टर्म आएगा एन सी 1, 5 रेज टू, इसको बेटर ना 1 प्लस की फॉर्म में लिखोगे, जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, इजी रहेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट दिस वन एज 1 प्लस 5 रेज टू एन माइनस 5n, इजी रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म बिकम्स एन सी 0, ओके। नेक्स्ट वन इज एन सी 1 5, नेक्स्ट वन इज एन सी 2 5 स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज एन सी 3 5 क्यू इंटू, 1 को नहीं लिख रहे हम, ऑब्वियस है, 1 रेज टू समथिंग इज 1, and NC4 5 raised to 4, and it goes up to NCN 5 raised to n minus 5n. Okay, so notice this one, NC0 is nothing but 1, NC1 is n, so it becomes 5n, and you can see that from this term onwards up to this term, 5 square is common, that is 25 is common, so you can take 25 as a common factor and write all the terms here minus 5n. Okay, so you can write this term as 1 plus 5n plus 25k, इसको k बोल देते हैं, जो भी अंदर लिखा है सबको मर्ज करके माइनस 5n। तो 5n से 5n क्या हो गया, कैंसर। तो जो अपना एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 25k प्लस 1। ओके, अब हमें रिमाइंडर बताना है
कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करता हूँ 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑब्वियस है 25k अपॉन 25k, ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, और ये 1/25। ओके, सो ये तो रिमाइंडर 0 देने वाला है। तो अब आपका बचा 1 अपॉन सिर्फ 25, और अगर 1 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आप हमेशा पॉजिटिव लिखते हो, है ना। इस चीज़ को भी हम नोटिस कर लेते हैं। जैसे आपको कभी दिया 3/25, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। देखो, अगर किसी नंबर को आप 25 से डिवाइड करते हो, कोई भी एक नंबर है, तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0, 1, 2 अप टू 24, ये सारे रिमाइंडर पॉसिबल है। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। एक चीज़ और बताता हूँ, इन केस कभी नेगेटिव आ जाए, जैसे आपने बोला कि -2 को डिवाइड करो 5 से, तो रिमाइंडर तो भाई -2 हो नहीं सकता, रिमाइंडर इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप क्या करोगे, ये जो -2 है ना, इसमें पहले तो 5 ऐड करोगे, पहले से 5 बनाओगे तो -3 से बन जाएगा, आई थिंक, है ना। -3 ऐड कर दोगे, +3, ऐसे करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -5 + 3/5। तो आप देखो ना, -5 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ठीक है, और +3/5। तो अब आपको फोकस करना है सिर्फ 3/5 पे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और शॉर्टकट समझने के लिए, शॉर्टकट क्या, अगर डायरेक्ट करना चाहो, अगर ऊपर नेगेटिव नंबर है नीचे पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना, 5 में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करा देना है, मतलब या ऐड बोल दो उसे, तो 3 आ जाएगा डायरेक्ट रिमाइंडर, अगर वो छोटा है तो। जैसे अगर किसी ने पूछा आपसे -1/4 क्या आएगा रिमाइंडर, तो कुछ नहीं करना, 4 - 1 दैट इज 3, क्योंकि आने वाला वही है सेम। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 raised to 100 डिवाइड बाय 3, इसमें रिमाइंडर हमको बताना है। ओके, सो यू हैव टू एक्सप्रेस 2 नियर बाय टू द 3, मतलब 2 को 3 के नियर बाय एक्सप्रेस करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाइनोमियल की कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आई कैन राइट 2 एज 3 - 1। ओके, और मैंने आपको बताया था 3 - 1/100 है, तो ये 3 के +1 टाइप का एक नंबर आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि -1 भले ही है बट ऊपर पावर 100 है, तो 3 के +1 टाइप का एक नंबर आएगा। और व्हेन यू डिवाइड 3 के +1 टाइप नंबर बाय 3, तो देखो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, डिपेंड करेगा 1/3 पे, सही है। तो इसका मीनिंग है 1/3, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, तो ये आंसर आ गया। ओके, थर्ड करते हैं। अब आपका मतलब 2 raised to 100, वेट अ मिनट, 3 raised to 51/8। अब 3 का मल्टीपल आपको 8 के नियर लाना है, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। बट यहाँ पे क्या है कि 3 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको इवन होना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, 3 × 3 raised to 50। आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, सो आई कैन राइट 3 raised to 50 एज 3 square into 25। ओके, सो 3 square इज नथिंग बट 9, तो 9 raised to 25/8, एंड आई कैन राइट 9 एज 1 + 8 आप लिखोगे तो फास्ट कैलकुलेशन, या फिर 8 + 1 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो हमें रिजल्ट तो याद ही है, 8 + 1 raised to 25/8। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ठीक है, इट बिकम्स 3, 8 के +1 raised to 8। अब आप नोटिस करो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 8 के, और 3 × 1 डिवाइड बाई 8 और रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर तो 0 दे देगा, अब डिपेंड करता 3/8, तो 3 इज लेसर देन 8, सो रिमाइंडर इज 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ओके, सो टू मोर प्रॉब्लम्स, आई थिंक 3 इज देयर, फोर्थ वन। ओके, सो फोर्थ वन इज 5 raised to 99 एंड अपॉन में 13। ओके, इसी टाइप एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, दैट इज 5 raised to 99 अपॉन में 11। इसको आप ट्राई करना, इसको मैं बताता हूँ। तो अब देखो 5 की पावर 99 है, तो यू हैव टू एक्सप्रेस 5 रेज टू समथिंग, 5 रेज टू समथिंग नियर टू द मल्टीपल ऑफ 13। 5 रेज टू समथिंग को आपको एक्सप्रेस करना है नियर टू द मल्टीपल ऑफ 13, तो 13 × 26 होता है। ओके, एंड 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है।
तो what we can do, I can write 5 into 5 raised to 19 8 because I have to express 5 square something. Okay, so in odd power I cannot express, so I'll write like that 5 into 5 raised to 98 upon 30. So 5 raised to 98 can be written as 5 square and upon 30. Okay, so what I can do, it becomes 25 raised to 49 upon 13, and 25 can be written as 26 minus 1 raised to 49 upon 13. Okay, so notice this expression. Okay, it's 26 minus 1, and most important thing is power is 49. So this expression comes out to be like that 26k minus 1 upon 13. Why? Because power is odd. तो ये ऐसा आ जाएगा. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये लाइक दैट ऐसा हो जाएगा कुछ. और अगर आप रिमाइंडर निकालोगे तो ऑब्वियस है जो फर्स्ट टर्म होगा उसका रिमाइंडर तो 0 होगा, और बाकी ये क्या है -5 raised to 13. तो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा. अब मैंने आपको बताया था अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो कुछ नहीं करना, 13 माइनस 5 कर देना, 8 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया आपका. ओके, अब आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को. ये 2023 का क्वेश्चन है. 5 रेज टू आई थिंक 99 ही है. यस, और अपॉन में 11. थोड़ा आप आइडिया लगाना इस क्वेश्चन का. ठीक है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. और हम एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ. ठीक है, सो दैट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. 4 दैट इज 5 इज 6. इसका आंसर आपको कमेंट करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू 2003 अपॉन 28 एंड इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट. ये क्या अपना फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर देन टेक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर. तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to search the power of 3 so that that power and 28 is very near. Okay, so 28 and 3, so 3 raised to 3 is nothing but 27, and 28 is nearby of that one. So what can I do, I have to write 3 raised to 3 something. Okay, so पहले तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 3 से ताकि मुझे पता चल जाए मल्टीपल कैसे बनाने हैं. तो 3 6 18, 2 3 6 18 and 3 7 21, that is 2. तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा अपना. ठीक है, 3 स्क्वायर 3 रेज टू 667 अपॉन 28. तो ये अपना क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 9, एंड आई कैन राइट दिस वन एज 3 रेज टू 3. वेट अ मिनट, 667 3 6 18 2 0 3 6 18 2 3 7 21. Okay, here is not 667. Okay, here is what you taken 3 raised to 2 from that one, so it is 2001. Okay, and you can write 3 raised to 3 and 667. Okay, like that. So 3 raised to 3 is nothing but 27, and it is 667 upon 28. Okay, so 27 can be written as 28 minus 1, 667 upon 28 into 9. So it will come out to be like 28k minus 1 because power is odd upon 28 into 9. Okay, fractional part is going like that. So 9 into 28k minus 28. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये रिमाइंडर 0 दे देगा, नो प्रॉब्लम. एंड यहाँ पे आ जाएगा -828.
तो आप रिमाइंडर बता दो इसका कितना आएगा। ठीक है, इसको आप कैसा लिखोगे, 19 आएगा रिमाइंडर। ओके, ये कितना आ गया हमारा, -928 आ गया ना। तो आप इसको क्या करो, आप लिख लो इसको ऐसा, 19 आप ऐड कर दो इसमें। ठीक है, और +19 और ये 28, तो ये -28/28 +19/28, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, -1 का, क्योंकि इंटीजर है। तो बचेगा हमारे पास 19/28, है ना। तो रिमाइंडर एक्चुअल में 19 ही है इसका, और आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो but we have to find the value of 19/28, not remainder. Okay, so we know that 19/28 is less than 1, और आपको पता है पॉजिटिव तो है ही और लेस देन 1 है, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है खुद आ जाएगा। मीन्स जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपका आंसर आएगा 0.5, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपका आंसर आएगा 0.7। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 19/28, बिकॉज इट इज अ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, एक और करते हैं क्वेश्चन। Next question is 7 raised to 2022 plus 3 raised to 2022 is divided by 5. So you have to look the power of 7 which is near to the multiple of 5. Similarly, power of 3 which is near to the multiple of 5. So I think 7 square is 49 and 3 square is 9. So it is a near to the 10 and it is near to the 50, and both are multiple of 5, and both are multiple of 5. So what can I do, I can write 7 raised to 2022 as 7 square 1011, similarly 3 square 1011 upon, ठीक है, sorry, just divided by 5. So it becomes 49 and it becomes 9. So 49 can be written as what? 50 minus 1, and 9 can be written as 10 minus 1. So using the result, I can write this one as 50k minus 1. Why? Because power is odd. Similarly, 10k minus 1. So it comes out to it 50k plus 10k minus 2. Now, if you divide by 5, 50k plus 10k upon 5 minus 2 by 5. So what do you see? 50k is multiple 5, so it gives 0 remainder. Similarly, 10k is multiple of 5, it gives 0 remainder. So we have to focus on -2, 5, that is remainder is nothing but 5 minus 2, that is 3. Okay, so do one last question. Question is 1 upon 2 raised to 1, 3 raised to 10, 2 raised to 2, 3 raised to 9, 2 raised to 3, 3 raised to 8, and goes up to 1 upon 2 raised to 10, 3 raised to 1, and it is equal to k, 3 raised to 10, 2 raised to 10. Then find remainder, then find remainder when k is divided by 6. k को हम किससे डिवाइड करेंगे उधर, 6 से, ठीक है। ओके, सो first thing you have to notice that the given series is GP. Given series is GP. If you notice that one, okay. So first term is 1 upon 2 raised to 1, 3 raised to 10, and common ratio is this term upon this term, that is 3 by 2. Okay, and it is greater than 1. So what is the sum of GP? That is Sn a r raised to 1 n minus r minus 1 when r is greater than 1. Okay, so here number of terms are 10. Okay, so because it is started for 2 raised to 1 and end up to 2 raised to 10. So you can write like that, a, what is a? A is 1 upon 2, 3 raised to 10, r raised to n. R, what is r? 3 by 2. 10 minus 1 and 3 by 2 minus 1, which is equal to k.
3 raised to 10, 2 raised to 10. Okay, so now solve this one. So 2, 3 raised to 10. 3 by 2 minus 1, that is half. So 2 comes here and it becomes 3 raised to 10 minus 2 raised to 10 upon 2 raised to 10, like that. So 2 to cancel out. Okay, so it becomes 3 raised to 10, 2 raised to 10, 2 raised to 10, 3 raised to 10. So 3 raised to 10, 2 raised to 10. सो अब होगा क्या कि ये से कैंसिल हो गया, सो के आ गया हमारा, के क्या आ गया, 3 रेस टू 10, 2 रेस टू 10. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 6 and find the remainder. So you have to look power of 3 near to the multiple of 6, similarly power of 2 near to the multiple of 6. So what can we do? Okay, 3 3 is 9, so we can write 3 square raised to 5. Okay, and 8, we can write 8 also, and 9, that is 3 3 and 4 is 7. Okay, so what we can do, we can write 2 raised to 4, no, 2 raised to, wait, 2 raised to 2 is better, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8. Okay, okay, so write like that, 2 raised to 4, that is 16. Okay, and that is 10. Okay, 16, that is 12 plus 4. Okay, ओके, एंड इट इज डिवाइड बाय 6, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट बिकम्स 9 रेज टू 5. ओके, एंड इट बिकम्स 4 रेज टू 5. सो 9 रेज टू 5 कैन बी रिटन एज 6 plus 3 रेज टू 5, and 4 can be written as 6 minus 2 raised to 5, like that. Okay, so it comes out to be 6k plus 3 raised to 5, because it's not 1. Okay, and it comes out to be 6q. Okay, and it comes out to be minus because there is power odd. So what happens, 6q minus 6q plus 3 raised to 5 plus 2 raised to 5, like that. Okay. Now you can solve manually this one. 3 raised to 5 is what? 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, 81 into 3, 243 है ना, and 2 raised to 5 is 32, and divide by 6. ये तो 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड हो ही जाएगा. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 243, 32. तो ये हो जाएगा 5 3 4 7, 275, डिवाइड 275 by 6. Okay, you can get the remainder. So 6 4 ja 24. Okay, and 6 5 ja kitna 30, 6 6 ja 36. Wait, okay, so if you divide this one by 6, so you get remainder as what, 5. Okay, so remainder of given k when divided by 6 is what, 5, because it becomes 275, and when 275 is divided by 6, so you get remainder as 5. So okay, so that is the answer. Okay, so thank you so much. Have a nice day.